सी सर ध्यान देना अभी स्टोरी की तरफ। हाँ, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे हीट ट्रांसफ़र में, तो हीट ट्रांसफ़र के चैप्टर के हीट ट्रांसफ़र में अगर हम देखेंगे, इफ़ यू हैव सीन हीट ट्रांसफ़र चैप्टर, देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र सर। फर्स्ट इज व्हाट? कंडक्शन, sorry, but before that I want to, before starting a theory, heat transfer chapter consists of what sir? Two parts. First part is what? Chapter 7.1 is a thermal resistance, and chapter 7.2 is what? Heat exchanger. If you see the index, have you seen the index of this heat transfer chapter? Okay, one minute, let me put the index in front of you. Correct. Second one is what? So this index is visible to you now. See, so second part is what? Second part is what? Heat exchanger. First part is thermal resistance, second part is heat exchanger. So currently we are dealing with which part? We are currently dealing with what? Thermal resistance. Now, but before going further, there are three types of heat transfer. First is a conduction, second is a convection, and third type of heat transfer is what? Radiation. What is meant by conduction? We are trying to understand what is meant by conduction, sir. See, suppose we have what? This is one. Suppose conduction dominates in solid, means what? How conduction is going to take place? Suppose this is one atom, adjacent to that there is another atom, then we have another atom, then again we have another atom. Just imagine that. And we are giving heat to what? Where we are giving heat? We are giving a heat to what? This atom, sir. We are giving heat to what, sir? First atom. Then in conduction, what is atom? What will happen? This heat will transfer from this atom to what? This atom. Then this one, means like this, guys. Sir, are you getting my point, sir? Then to this one, and then what? To this one. So this is what? A conduction. So conduction in dominant in what? Solid. Now this is a mean by conduction. Now what is meant by convection? Convection is dominant in liquid and gases, because their means their molecules can move. Means what? We are giving heat to this molecule, but what will happen? Just imagine that here we have what? Another extra molecule. What we have? Suppose we have what? One extra suppose here we have some more molecules. Just imagine that. And what will happen? How convection is going to take place? How the convection is going to take place? Energy associated with this molecule, what will happen? It directly go to this place and give that energy to this molecule. Okay, you got the convection? मतलब क्या होगा सर? यह मोलिक्यूल यहाँ से उठेगा, यहाँ से निकलेगा सर, और यहाँ से निकल के वो कहाँ पे आ जाएगा? हाँ, मतलब वो यहाँ पे जाके यहाँ पे पहुँच जाएगा सर। मतलब मोलिक्यूल खुद जाके अपनी एनर्जी दे रहा है सर। आ रही क्या आपको बात समझ में? कंडक्शन में क्या होता था कि यह मोलिक्यूल इसको देता था, फिर इसको देता था, इसको देता था, यह हो गया कंडक्शन। मतलब वन बाय वन, मतलब समझो ना, हमें पेपर पास करना है, एक क्वेश्चन पेपर। सपोज बहुत सारे बच्चे बैठे एक लाइन में, सपोज यहाँ पे टीचर खड़ा है, कोई टीचर क्या करता है कि इस बंदे को दे देता है, और फिर वो आगे वाले बंदे को वन बाय वन देते रहता है सर। ओके, आ रही क्या सर स्टोरी आपको मेरी समझ में? मगर इसमें क्या होता है सर, एक टाइप का टीचर क्या होता है, वो खुद जाके देता है। मतलब यहाँ पे देने के बजाय वो क्या करेगा, उस आखिरी वाले बंदे को कुछ चीज़ देनी है तो वो क्या करेगा, वो खुद जाके देगा। दैट इज मीन बाय कन्वेक्शन। अब रेडिएशन क्या होगा कि टीचर डायरेक्टली उसको कुछ पेन वगैरह आखिरी वाले बंदे को देना है, तो डायरेक्टली उसको क्या कर देगा, थ्रो कर देगा सर। मीन्स उसको मीडियम कुछ नहीं चाहिए, वो डायरेक्टली थ्रो कर दे रहा है। ओके, दैट इज मीन बाय रेडिएशन सर। ओके, ठीक है सर, स्टोरी समझ में आ गई। ये तीन टाइप के हीट ट्रांसफर समझ में आ गए। कंडक्शन किस में हो गए, डोमिनेंट
सॉलिड्स में दूसरा क्या है सर, कन्वेक्शन, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल मूव हो सकते हैं ना लिक्विड्स एंड गैसेस में सर, तो इसलिए वहाँ पे कन्वेक्शन डोमिनेंट है। और तीसरा टाइप का यह है रेडिएशन, जिसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, मतलब अर्थ से, सन से जो एनर्जी हमारे अर्थ के ऊपर आ रही है वो कौन से थ्रू आ रही है सर, किस हीट ट्रांसफर के थ्रू आ रही है, रेडिएशन के थ्रू आ रही है सर। किसके थ्रू आ रही है, ओके हाँ ओके। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पता है सर आपको, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मीन्स व्हाट, रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है सर, व्हाट इज मीन बाय थर्मल रेजिस्टेंस, हाँ मतलब हीट ट्रांसफर को फ्लो, मतलब कभी भी कोई भी चीज़ से हीट ट्रांसफर जो होगा उसको क्या होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको हम क्या कहेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस सर। इट इज सेम लाइक अ व्हाट, इट इज अ सेम लाइक व्हाट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब थर्मल रेजिस्टेंस ड्यू टू कंडक्शन हम देखते हैं। देखो दो टाइप के थर्मल रेजिस्टेंस हो सकते हैं, एक क्या हो सकता है सर, कंडक्शन वाला, एक क्या हो सकता है सर जी, एक क्या हो सकता है, मेरा आवाज आ रहा है मोहन सर, हाँ हाँ, एक के क्या हो सकता है, कंडक्शन वाला। अब सी द कंडक्शन सर, अब कंडक्शन में क्या होगा, पहले टाइप का थर्मल रेजिस्टेंस ड्यू टू क्या होगा, कंडक्शन। अब कंडक्शन में क्या होगा, तीन चीज आएगी, एक आएगा वॉल और स्लैब, दूसरा क्या आएगा सिलेंडर और पाइप, और तीसरा क्या आएगा स्फीयर, कंडक्शन में। और कंडक्शन किस में होता है सर, सॉलिड में। अब वॉल और स्लैब में क्या होगा, इस एड में क्या होगा, सपोज फर्नेस वॉल, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, वॉल और स्लैब का क्या है, फर्नेस वॉल। एक तरफ क्या होते हैं, हॉट गैसेस होते हैं, दूसरे तरफ क्या होता है, सराउंडिंग होता है। तो फर्नेस वॉल के थ्रू हॉट गैसेस की एनर्जी किस में जाती है सर, फर्नेस वॉल में जाती है। आ रही क्या आपको बात समझ में। और किसके थ्रू जाएगी, ये जो एरिया होगा यह हीट ट्रांसफर एरिया होगा, और यह क्या होगी, आपकी वॉल की थिकनेस होगी सर, यक्स क्या होगा आपका, मेरा कर्सर कहाँ पे दिख रहा है आपको, ओके कर्सर कैसे दिख रहा है आपको मेरा, हाउ माई कर्सर इज लुकिंग टू यू, हाँ पेन का जैसा दिख रहा है ना, हाँ अब देखो दिख रहा है कि आपको, यह होगी थिकनेस ऑफ द वॉल। तो इस केस का थर्मल रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं सर आरटीएच से। कैसे डिनोट करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस को सर, आरटीएच, और आरटीएच इज इक्वल टू क्या होगा सर जी, हाँ यक्स, यक्स मतलब थिकनेस, के, हाँ के ए, और ए का मतलब क्या होगा, हीट ट्रांसफर एरिया, और आरटीएच का यूनिट क्या होगा, केल्विन पर वॉट। आरटीएच का यूनिट क्या होगा सर, के मतलब केल्विन। अब देखो यक्स मतलब थिकनेस ऑफ द वॉल, ए मतलब हीट ट्रांसफर एरिया, के मतलब क्या होगा सर, के मतलब क्या होगा सर, थर्मल कंडक्टिविटी। देखो यूनिट, इस यूनिट से और इससे कंफ्यूज नहीं होने का सर, ओके यह केल्विन यूनिट है और यह स्मॉल के है सर। स्मॉल के मतलब क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी, और जिसका यूनिट क्या होगा, वॉट पर मीटर केल्विन सर, क्या होगा। अब यह आरटीएच किस में होता है सर, आरटीएच किसका थर्मल रेजिस्टेंस है, यह एक्स बाई के है, किसका है सर, यह व्हाट इज द वॉल और स्लैब का, किसका है सर, हाँ अब इसमें कोई डाउट सर आपको, ओके ठीक है। अब जैसे वॉल और स्लैब है, अब वैसे ही क्या होगा, सिलेंडर और पाइप होगा सर। अब यह मैं इसके सिलेंडर और पाइप के दो व्यूज दिखाए, सपोज यह लेंथ वाइज व्यू और यह क्रॉस सेक्शनल व्यू, और यह आ रहा है इनर रेडियस, आर ओ क्या होगा, आउटर रेडियस, और यल क्या होगा, लेंथ ऑफ द पाइप। और समझिए कि पाइप के थ्रू क्या फ्लो हो रहा है सर, जस्ट इमेजिन कीजिए पाइप के थ्रू स्टीम फ्लो हो रही है सर, क्या हो रही है, स्टीम। तो वो स्टीम की एनर्जी पाइप के थ्रू कहाँ पे जाएगी सर, स्टीम के थ्रू पाइप की एनर्जी कहाँ पे जाएगी, सराउंडिंग्स में जाएगी। तो अब यह जब हीट ट्रांसफर जब सराउंडिंग में जाएगा तो उसको रेजिस्टेंस होगा, और उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, आरटीएच। तो उसके लिए आरटीएच का रिलेशन क्या होगा, 1/2 पाई के एल इंटू एल एन, एल एन स्टैंड फॉर नेचुरल लॉग, आर ओ बाय आर आई।
अब इस के का मतलब क्या होगा सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्मॉल के? हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी, जिसका यूनिट क्या होगा सर? वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक है, यह किसके? अब वॉल और पाइप के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होगा सर, मतलब इनर से आउटर की तरफ जो हीट ट्रांसफर होगा, उसको जो रेजिस्टेंस आएगा, थर्मल रेजिस्टेंस, वो क्या होगा सर? 1/2 पाई के एल एन आर ओ बाय आर है। ठीक है, फिर समझो नेक्स्ट थर्ड टाइप का थर्मल रेजिस्टेंस का डिवाइस है कंडक्शन का स्पीयर सर। क्या है सर? अब स्पीयर में क्या होगा सर? अब समझो एलएनजी कैरियर है, ओके, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है सर। क्या है सर? एलएनजी कैरियर है। अब एलएनजी कैरियर में क्या होगा सर? अंदर क्या होती है? जो एलएनजी होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो लिक्विड फॉर्म में होता है और उसका टेम्परेचर बहुत लो होता है सर। उसका टेम्परेचर क्या होता है? बहुत लो। सराउंडिंग का टेम्परेचर उससे ज़्यादा होता है। तो इस स्पीयर वॉल के थ्रू क्या होगा सर? हीट ट्रांसफर कहाँ पे आएगा सर जी? तो अब उस हीट ट्रांसफर को जो थर्मल रेजिस्टेंस आएगा, मतलब उस हीट ट्रांसफर के फ्लो को रेजिस्टेंस होगा, जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा, उसका रिलेशन क्या होगा? 1/2 पाई के इंटू 1/RI माइनस 1/RO सर। ओके, ठीक है, यह थर्मल रेजिस्टेंस समझ में आ गया सर जी आपको? पाई के। अब स्पीयर में थोड़ी लेंथ होती है सर, स्पीयर में लेंथ होती है क्या? स्पीयर मुझे बताओ, स्पीयर अगर हम लेंगे सर, स्पीयर में लेंथ होगी क्या सर जी? हाँ, स्पीयर में लेंथ नहीं होगी। ठीक है सर, आ रही है आपको मेरी बात समझ में? ओके गुड, कोई डाउट सर? क्लियर में स्टोरी क्लियर है यहाँ तक? ओके गुड। तो यह थर्मल रेजिस्टेंस के आपको सारे रिलेशन समझ में आ गए? ओके, अब नेक्स्ट रिलेशंस की तरफ हम देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब जैसे कंडक्शन देखा हमने, कंडक्शन किस में होता है सर? मुझे बताओ, कंडक्शन किस में होता है सर? सॉलिड्स में होता है। कंडक्शन किस में होता है सर? कंडक्शन किस में होता है? सॉलिड्स में होता है। और सॉलिड्स के 3 टाइप के डिवाइस देखे हमने। वॉल देखा, स्पीयर देखा। वैसे ही थर्मल रेजिस्टेंस ड्यू टू क्या होगा सर? कन्वेक्शन होगा सर। कन्वेक्शन किस में होगा? कन्वेक्शन किस में? गैसेस में, लिक्विड्स और गैसेस में होगा सर। किस में होगा? लिक्विड्स और क्या होगा सर? लिक्विड्स और गैसेस में होगा। और वो जो उसका जो रिलेशन होगा, आर टी एच इज इक्वल टू क्या होगा? 1/H। क्या होगा सर? आर टी एच इज इक्वल टू क्या होगा सर जी? हाँ, H। ए मतलब हीट ट्रांसफर एरिया और H मतलब क्या होगा? हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। क्या होगा सर? केल्विन। अब देखो, अगर आपको होम्स लॉ पता है सर, होम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। होम्स लॉ पता है इलेक्ट्रिसिटी का? होम्स लॉ पता है? V इज इक्वल टू IR। सपोज जस्ट इस 2 मिनट के लिए इधर को वाले को भूल जाइए, बस इसकी तरफ ध्यान दीजिए सर। अब आपको अगर होम्स लॉ पता होगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो होम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या बताता है सर? कि V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। मतलब I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, R मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और V मतलब क्या होता है सर? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। यही होता है सर होम्स लॉ। V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। आपने आपकी इलेक्ट्रिसिटी में सीखा होगा। सो I इज इक्वल टू क्या होगा सर? V/R। I इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, अब मुझे बताओ यहाँ पे हु इज रिस्पॉन्सिबल। 2 मिनट इसको देखना मत। अब यहाँ पे करंट के फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है सर? यहाँ पे करंट के फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वोल्टेज। अगर वोल्टेज होगा तभी जाके करंट फ्लो होगा ना सर, नहीं तो करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा ना सर। आ रही है आपको बात समझ में? सो क्या होगा सर? वोल्टेज नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ, तो मतलब यहाँ पे करंट के लिए, मतलब करंट के लिए वोल्टेज रिस्पॉन्सिबल कौन है? वोल्टेज। और यह करंट किसके थ्रू फ्लो हो रहा है? रेजिस्टेंस के थ्रू। करंट किसके थ्रू फ्लो हो रहा है सर? मुझे बताओ। थ्रू द रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है। अब सिमिलरली सर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे
तो यहाँ पे यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या था, इलेक्ट्रिक करंट था, वोल्टेज था और रेजिस्टेंस था। वैसे यहाँ पे इस थर्मल सर्किट में यहाँ पे अब मुझे बताओ हीट ट्रांसफर कब फ्लो होता है सर, कैसे होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो होता है सर। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी जाके हीट ट्रांसफर होगा सर, नहीं तो हीट ट्रांसफर होगा क्या, मुझे बताओ, नहीं हो। हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी जाके, मतलब यहाँ पे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस था V, वैसे यहाँ पे क्या होगा, हीट ट्रांसफर कब होगा सर, मुझे बताओ। हाँ, मतलब T1 टेम्परेचर आपका हायर होगा, T2 टेम्परेचर क्या होगा, लोअर होगा सर। मतलब यहाँ पे हम हायर टेम्परेचर टू क्या होगे सर, हायर टेम्परेचर टू हम कहाँ पे जाएंगे सर जी, हाँ T1 टू हम कहाँ पे जाएंगे सर, T1 से हम कहाँ पे जाएंगे, T2 में जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस था V, तो यहाँ पे क्या आएगा, T1 माइनस T2, मतलब हीट ट्रांसफर इन T1 और T2 के बीच में एक थर्मल रेजिस्टेंस है RTH। अब थर्मल रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है सर, वॉल है, स्लैब हो सकती है, सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है। ओके ठीक है सर, कोई डाउट सर इसमें यहाँ तक की स्टोरी में? ओके गुड। हाँ, फिर उसके बाद क्या होगा, क्यू डॉट। तो अब यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक करंट था वैसे यहाँ पे क्या होगा, क्यू डॉट का मतलब क्या होगा, हीट ट्रांसफर रेट। क्यू डॉट का मतलब क्या होगा सर, हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू डॉट, क्यू डॉट मीन्स व्हाट, हीट ट्रांसफर रेट। मतलब आपको क्यू का मतलब तो पता है ना, हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखा है, और क्यू के ऊपर बिंदी लगा दी तो क्या होगा, पर सेकंड में हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है सर। ओके, तो क्यू, हाँ ओके ठीक है, तो क्यू डॉट इज इक्वल टू क्या होगा सर, T1 माइनस T2 थर्मल रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था सर, थर्मल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट था, यहाँ पे क्या है, हाँ मतलब यहाँ पे हीट ट्रांसफर है सर, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा था सर, हाँ हीट ट्रांसफर फ्लो हो रहा है सर। आ रही है आपको बात समझ में? तो क्यू डॉट इज इक्वल टू क्या होगा, T1 माइनस T2, हाँ, और यहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन T2। अब जैसे, हाँ ठीक है, कोई डाउट, यह पॉइंट समझ में आ गया आपको, कोई डाउट इसमें? अब जैसे आपका ये होता था सर, क्या होता था, अब जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस इन सीरीज होते थे, वैसे ही क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंसेस इन सीरीज हो गए। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है सर, समझो यह फर्नेस वॉल का मैंने एग्जांपल लिया आपके लिए। किसका एग्जांपल लिया है सर मैंने, हाँ, अब यहाँ पे फर्नेस वॉल कैसे होगा, इस तरफ हॉट गैसेस होंगे, फिर फायर ब्रिक होगा, फिर क्या होगा सर, इंसुलेशन होगा। क्या होगा सर, फायर ब्रिक होगा, इंसुलेशन होगा, उसके ऊपर क्या हो गया सर, हाँ ओके ठीक है सर, ओके कोई डाउट सर, ओके गुड। सो अब यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे केयरफुली ध्यान देना। तो अब यहाँ पे देखो, हॉट गैसेस का टेम्परेचर जो होगा उस टेम्परेचर को हम नाम क्या देंगे, फिर यहाँ पे जहाँ पे फायर ब्रिक स्टार्ट हो रही है वहाँ का टेम्परेचर क्या देंगे नाम, T1। फिर जहाँ पे फायर ब्रिक खत्म हो रही है वहाँ का टेम्परेचर क्या देंगे नाम उसको, फिर जहाँ पे फिर फायर ब्रिक और इंसुलेशन सर, फिर जहाँ पे इंसुलेशन और स्टील है, इंटरफेस है, उस टेम्परेचर को नाम क्या देंगे, T3। और यहाँ का जो टेम्परेचर होगा उसको नाम क्या देंगे, T4। और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा उसको नाम क्या देंगे सर, आउटर। अब यहाँ पे देखो हमारी हीट ट्रांसफर कैसे ट्रांसफर हो रहा है, हॉट गैसेस के थ्रू फायर ब्रिक, फायर के थ्रू इंसुलेशन, इंसुलेशन के थ्रू स्टील, और स्टील के थ्रू कहाँ पे जा रहा है सर, कहाँ पे जा रहा है सर जी, सराउंडिंग में जा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक के स्टोरी में? ओके क्लियर है। हाँ, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सर, तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे टी इनर से हम कहाँ पे जा रहे हैं, T1 में जा रहे हैं सर। तो यहाँ पे क्या है, हॉट गैसेस है, यहाँ पे क्या है, हॉट गैसेस। हॉट गैसेस मतलब क्या होता है सर, लिक्विड होता है, सॉरी फ्लूइड ये होता है, गैसेस होती है। तो गैसेस में जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्शन का होता है कि कन्वेक्शन का होगा सर? हाँ, कन्वेक्शन का होगा सर। तो मतलब यहाँ पे टी इनर से T1 जो थर्मल रेजिस्टेंस आएगा उसको हम नाम क्या देंगे सर, आर इनर। क्या नाम देंगे सर, दिख रहा है क्या आपको? यह क्या होगा, हाँ ओके, यह वापस से यहाँ पे रिप्रिंट हुआ है। तो T1 से टी इनर से T1 जो होगा वो क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस सर हमारा आर इनर। फिर T1 से T2 कंडक्शन का होगा कि कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस होगा जब हीट ट्रांसफर जाएगा सर? कंडक्शन का होगा, फायर ब्रिक क्योंकि सॉलिड है। फिर T2 से T3 मतलब उसको नाम देंगे आर फायर। क्या नाम दिया सर हमने? फिर T2 से T3 क्या होगा सर, आर ओ भी कंडक्शन का। फिर T3 से T4 किसका होगा सर, मुझे बताओ? कंडक्शन का होगा। फिर T4 से T आउटर किसका होगा सर, कन्वेक्शन का होगा क्योंकि वो सराउंडिंग में है। ओके, आपको इस ड्राइंग को नहीं देखना है सर, ये ड्राइंग रिपीट हुई है, आपको ये ड्राइंग देखना है सर, ठीक है? कोई डाउट आपको, समझ में आ गया आपको? हाँ, ये रेजिस्टेंस से समझ में आ गया, थर्मल रेजिस्टेंस है इन सीरीज। हाँ, और यह हमने एक फर्नेस वॉल के थ्रू हमने समझने की कोशिश की है क्योंकि फर्नेस वॉल इजी टू अंडरस्टैंड है सर। अब आर इनर जो होता है सर, आर इनर टी इन, अब कन्वेक्शन वाला है तो कन्वेक्शन का रिलेशन हमने क्या दिखा है, 1/HA। क्या देखा है सर? तो आर इनर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/H इनर इंटू ए। अब आयर फायर सॉलिड है और फायर ब्रिक क्या है, आपकी वॉल है, और इस वॉल की थिकनेस क्या है, एक्स फायर है। हाँ, तो उसके लिए RTH क्या होगा सर, थर्मल रेजिस्टेंस X/K। हाँ, और K फायर मतलब क्या होगा, व्हाट इज मीन बाय K फायर सर, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ व्हाट, फायर ब्रिक सर। सिमिलरली आर इंसुलेशन और आर स्टील सर। ओके, वो क्या हो गए, कंडक्शन वाले होंगे सर, और वो क्या होगा, वापस से क्या होगा सर, कन्वेक्शन वाला। कोई डाउट यहाँ तक के? यह रिलेशंस कैसे लिखे सर मैंने? हाँ ओके, ठीक है, ओके। अब देखते हैं, अब थ्रू आउट जो हीट ट्रांसफर होगा इस करंट अरेंजमेंट के लिए सर, थ्रू आउट जो हीट ट्रांसफर होगा, मतलब आप कोई भी पॉइंट लो सर, थ्रू आउट हीट ट्रांसफर क्या होगा सर, सेम होगा। और वो हीट ट्रांस सेम होगा, और जिसको नाम क्या दिया हमने, क्यू डॉट। दिख रहा है क्या आपको? थ्रू आउट हीट ट्रांसफर क्या होगा सर जी, क्यू डॉट। थ्रू आउट हीट ट्रांसफर क्या होगा, क्यू डॉट, और उसको नाम क्या दिया हमने, क्यू डॉट। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक के स्टोरी में? क्लियर है? ओके गुड। तो अब देखो, अब क्यू डॉट निकालने के अलग अलग वेज है। अगर हमने दो टेम्परेचर्स लिए, टी इनर और टी आउटर, देख रहा है क्या टी इनर आपको सर? अगर हमने ये दो टेम्परेचर लिए सर, ये टी इनर और टी आउटर, यहाँ दो टेम्परेचर लिए, तो उनके बीच के आपको सारे रेजिस्टेंस लेने पड़ेंगे, आर इनर, आर फायर, आर इंसुलेशन, आर स्टील और आर आउटर। इनके बीच के आपको क्या करना पड़ेगा सर? हाँ, मतलब अगर क्यू डॉट का एक रिलेशन क्या होगा, दिख रहा है आपको? हाँ, डिवाइडेड बाय क्या होगा, टी इनर और टी आउटर के बीच में क्या रेजिस्टेंस है, आर इनर। मतलब इन दो टेम्परेचर्स के बीच में ये सारे रेजिस्टेंस है सर, आर इनर, आर फायर, आर इंसुलेशन, आर स्टील। ओके, ठीक है सर, ओके गुड। हाँ, अब अगर हमने दो टेम्परेचर लिए सर, टी इनर और T2 लिया, तो टी इनर और T2 के बीच में कौन से दो रेजिस्टेंसेस है, मुझे बताओ? टी इनर और T2 के बीच में आर फायर। ओके, आर फायर है सर। ओके, तो क्या होगा, हाँ, तो फिर टी इनर मतलब आप क्यू डॉट इससे भी निकाल सकते हो, आप क्यू डॉट इससे भी निकाल सकते हो। मतलब
क्यू डॉट आपको इससे जो वैल्यू मिलेगी, इससे भी आपको क्यू डॉट की वही वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पे क्यू डॉट का यूनिट क्या होगा सर? वॉट। क्या यूनिट होगा सर? वॉट। और क्यू डॉट मतलब क्या होगा? हीट ट्रांसफर रेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू डॉट सर? मतलब 1 सेकंड में हीट ट्रांसफर कितना फ्लो हो रहा है सर। मतलब वॉट का मतलब ही क्या होता है सर? जूल पर सेकंड। ओके, अब वही अगर हमने T2 और T3 ले, T2 और T3 के बीच में कितने रेजिस्टेंस है सर जी? हाउ मेनी रेजिस्टेंस आर? बस आर इंसुलेशन। फिर T1 और T4 के बीच में क्या है सर? तो फिर नेक्स्ट तरीका क्या हुआ? क्यू डॉट आर फायर, आर इंसुलेशन, आर स्टील। सिमिलरली T3 और T आउटर, यह 2 रेजिस्टेंस होंगे, आर स्टील और आर आउटर सर। ओके, यह हुआ आपका अलग अलग वे सर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? क्लियर है सर स्टोरी? ओके गुड। फिर अभी नेक्स्ट, अब पहले मैंने यह न्यूमेरिकल भेजा था आपको। हाँ, अभी आप क्या करना, इस न्यूमेरिकल के थ्रू जाना। अभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी सर इस न्यूमेरिकल की। हाँ हाँ, अभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे सर, क्या है क्या नहीं है। ओके ठीक है। हाँ, और उसके बाद सर नेक्स्ट चीज़, एक क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे वॉल के लिए जो एरिया होता है सर, वॉल के लिए जो एरिया होता है सर, वॉल के लिए जो एरिया होगा वो क्या होगा? 2 पाई आर यल, सॉरी वॉल नहीं, सिलेंडर के लिए जो एरिया होता है, दिख रहा है कि आपको सिलेंडर का एरिया? आर सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सर? 2 पाई आर एल। क्या होता है सर? 2 पाई आर एल। जो सिलेंडर का सरफेस एरिया, मतलब जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, मतलब जो सराउंडिंग में, ऐसे समझिए कि सिलेंडर के अराउंडिंग में आपने मेटल शीट लगा दी, तो उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा सर? 2 पाई आर एल। ठीक है, कोई डाउट सर? ओके, अभी समझ में आ गया ना स्टोरी आपको? अभी आप कर पाओगे। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा सर? कुछ रेजिस्टेंसेस निग्लिजिबल है सर, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? ओके, आप कीजिए सर, सॉल्व कीजिए, फिर मैं ऐसे ही आपको फ़ोन करूँगा। मैं आपको और कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड करता हूँ। ओके।